morning everyone. As you can see the title of my video, I am going on a 100 kilometers bike ride. 100 kilometers bike ride is like a milestone I will say. So I just thought कि क्यों ना एक बार 100 kilometers की cycling की जाए. To make this ride bit more interesting, what I'll do is कि मैं हर 10 किलोमीटर पे आऊँगा and I will let you know what are the benefits of cycling. Okay, so अभी पहला मुझे बताना है. So the first benefit of cycling would be it's 5:16 AM in the morning and I'm out cycling. तो सबसे बड़ा benefit यही है कि आपका daily routine बहुत ही अच्छा हो जाता है. You can fix any routine you want to without any problem. So the first benefit is you can fix your daily routine. So I'm done with 10 kilometers now, and the second benefit of cycling, I think it's, you see my heart rate, it's around 168. Your heart and lung, your cardiovascular activity improves a lot, and even your lungs become very powerful. So I think this is the second benefit of cycling. So I have completed 20 kilometers and 0 से स्टार्ट किया था. 0 पे एक बेनिफिट बताया था, 10 पे एक बेनिफिट, and now on 20th. You see my knees. So when you're riding your bike, there is a joint mobility. आपका joint ना पूरे टाइम rotate करता रहता है. It's really beneficial for your joint. शायद अभी ना समझ में आए, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे या फिर आप और ओल्डर एज पे आओगे तो आपको फील होगा कि आपके नीज बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉट इवन एक्सरसाइजिंग. I am back. So I have done 30 kilometers now, and the next benefit of cycling is it reduces your stress. जब आप cycling करते हो तो आपके अंदर ना concentration होता है रोड पे. So ना जो tensions होती है ना लाइफ की, उसको आप उतना ध्यान ही नहीं दे पाते हो. फिर आप enjoy भी ज़्यादा करते हो, no doubt about it. तो this is the next benefit मेरे दिमाग में आप आया है while riding. One thing I really wanted to tell you guys is the fact कि अगर आप 100 किलोमीटर्स की राइड पे जा रहे हैं तो always remember you have to conserve your energy first. बाद में आप चाहे तेज़ चला लो, बट इनिशियली अगर आप तेज़ चला लोगे ना तो लास्ट में जाते जाते आपकी पूरी हालत ख़राब हो जाएगी. तो एक्साइटमेंट में कभी तेज़ मत चलाओ. बी कंसिस्टेंट विद द स्पीड आई विल से. So guys, I have completed 40 kilometers and I am going quite good. I have sandwiches and biscuit in my pocket and I'll be using it very wisely only when I require it. And the next benefit, you see I have lost 1234 calories till now. Yeah, when you lose so much calories, you tend to look fitter. आप ना थोड़े अच्छे दिखते हो. तो आई थिंक साइकिलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप दिखने में अच्छे लग जाते हो, क्योंकि आपका फिजिक थोड़ा ठीक हो जाता है.
अभी आई हैव डन 50 किलोमीटर्स, अबाउट टू कंप्लीट 50 किलोमीटर्स। और जो बेनिफिट मेरे दिमाग में आया नेक्स्ट इज़ दैट आपका ना पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है। यू सी ऑन अ बाइक, ऑन अ रोड बाइक स्पेशली, you have only 3 postures, 3 like postures to choose from. पहला है the one I am at. The other one is the aero one, which is good for speed, and the third one is the very, like, what would you call it, a very nice posture. इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास ब्रेक्स का कंट्रोल नहीं होता है, तो ओनली व्हेन यू आर ऑन अ प्लेन रोड आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। किलोमीटर्स पूरे हो गए एंड आई हैव टू रिटर्न बैक फ्रॉम हियर, क्योंकि जो भी मेरा रूट था उस हिसाब से हाँ, तो अब 58 किलोमीटर से मुझे वापस लौटना है, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली 41 किलोमीटर पड़ेगा, आई गेस 42 किलोमीटर्स मेरा घर, एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई 100 किलोमीटर्स। आई एम गोइंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी एज सच। प्लस आई एम ऑन अ रोड बाइक, सो थोड़ा I feel it's more comfortable for long run. So I've completed 60 kilometers now, and as per the plan I have to tell you one more benefit of cycling. I think I am avoiding these potholes like a pro which are coming on the route. So there is a big involvement of hand and eye coordination. तो next benefit यही है कि आपका hand और eye coordination बहुत अच्छा हो जाता है, और ख़ास तौर से इंडिया में, क्योंकि आपको बहुत सतर्क होकर चलाना पड़ता है। यू कांट जस्ट राइड, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। सो आई एम डन विद अबाउट 63 किलोमीटर्स, और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल अगेन स्टार्ट माई राइड। और अभी तक तो ठीक है, बट अब वापस जाने में पूरा अपहिल है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। हेलो गाइस, आई एम बैक। अभी 70 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और अब रोड पे काफ़ी ट्रैफिक दिखना शुरू हो गया है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 hour 20 minutes टू रीच बैक होम। तो एज़ पर द नॉर्म ऑफ टुडे मॉर्निंग, अब नेक्स्ट बेनिफिट ये है साइकिलिंग का कि व्हेन यू आर राइडिंग आउट, तो आपको, क्योंकि आप साइकिल पे होते हो, तो आपको ना दुनिया बहुत डिफरेंट दिखती है, एंड मोर ओवर यू गेट टू सी द वर्ल्ड विच यू नॉर्मली डोंट गेट टू सी। कार में रहते हो आप जल्दी निकल जाते हो, स्कूटी पे भी जल्दी निकल जाते हो, बट साइकिल पे हर चीज़ दिखती है और थोड़ा आप नेचर से ज़्यादा क्लोज आ जाते हो। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। सो गाइस 80 किलोमीटर्स हो गए हैं और मुझे भी थोड़ा सा चार्म हो गया है बार बार हर 10 किलोमीटर पे आके कुछ वीडियो में बोलने का। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बार बार वेट ही कर रहा हूँ इस टाइम के आने का। सो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ साइकिलिंग ये है कि देखो, आई हैव कंप्लीटेड 80 किलोमीटर्स। मेरा ना डिटर्मिनेशन बढ़ गया है, और कोई भी इंसान जो साइकिलिंग करेगा तो वो पहले 10 करेगा, फिर 20 करेगा, फिर 30 करेगा, उसका बढ़ता जाएगा, उसको ना और मन करेगा साइकिलिंग करने का। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी डिटर्मिनेशन पावर बढ़ रही है। तो ये ना सिर्फ साइकिलिंग में नहीं, आपकी लाइफ में और भी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी। कोई
हार्ड सिचुएशन आ जाए तो भी हेल्प करेगी, और ऐसे टाइम पे भी हेल्प करेगी जब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे फिजिकली और मेंटली। I have completed 85 kilometers. Now I am feeling a bit tired. अब बस लास्ट के 15 कंप्लीट हो जाएं। जो लास्ट का होता है उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, यू जस्ट फील लाइक बस हो जाए वाला सीन। सो गाइज आई एम अबाउट टू कंप्लीट 90 किलोमीटर्स, और मैं सोच ही रहा था कि मैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या बताऊं। तो मेरे दिमाग में आया कि लाइक आई एम आउट फ्रॉम अबाउट 3 hours 50 minutes. तो द अमाउंट ऑफ विटामिन डी आई हैव रिसीव्ड इन द होल प्रोसेस इज़ अ लॉट। मुझे वो दवाई नहीं खानी पड़ेगी, और आजकल यूथ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि उसको विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि वो लोग धूप में नहीं निकलते हैं। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ बिग बेनिफिट ऑफ साइकिलिंग दैट आपका विटामिन डी कभी कम नहीं होगा। हाल ऐसा हो गया है कि इतना बोर हो गया हूँ कि एक बंदा जा रहा था, उसको मैं ज़बरदस्ती दोस्त करके रोक लिया। मैंने कहा दोस्त चलो मेरे साथ, तो वो कहता है नहीं भैया मेरे को यहीं तक जाना। मैंने कहा नहीं तुमको तो अब चलना पड़ेगा, तो वो राज़ी नहीं हुआ। नहीं 100 नहीं हो गया अभी थोड़ा बचा हुआ है। लास्ट के 10 किलोमीटर काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो गया है, मेनली बिकॉज बहुत गर्मी है। सो गाइस दिस इज़ इट। आई नो मेरी आवाज़ में एंथुसियाज्म नहीं है राइट नाउ, क्योंकि बहुत थक गया हूँ, बट यस जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। आई हैव कंप्लीटेड माई 100 किलोमीटर्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। ये लास्ट मुझे बताना था, एंड आई थिंक आई विल लीव इट ऑन यू गाइज टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अदर देन दोज आई हैव टोल्ड यू, कि इसके अलावा और कौन से बेनिफिट होते हैं साइकिलिंग के। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। गुड बाय। घर देख कर बैठ सोच कर एक अलग ही खुशी सी मिल रही है। अब बस मुझे जाना है, नहाना है और थोड़ी देर के लिए शांति से सो जाना है। और हाँ 3848 कैलोरीज बर्न किया हूँ। अब कुछ अच्छा तो खाना बनता ही है। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट।